Hello and very good morning to all of you. How are you, students? This is the first video for 11th. Already I have uploaded a few videos of class 12 and in which just I'm going to discuss in detail NCERT line by line and detailed explanation. So I also thought that why not for students in the 11th, those who are going to prepare for the NEET examination. So I'm going to upload this first video of class 11th, and in this I'm going to discuss the first chapter, that living world. So let us just begin this. So as you might be aware, according to the new NTA syllabus, as you will find out in the new book, they have only discussed first paragraph is there, but what is living? It has been excluded in the new book, but according to new syllabus, this is going to come. So it means we have to discuss first paragraph as well as what is living, which is missing in the new textbook. So you can either take the print or just pics. I mean the photocopy of the second paragraph. That is what is living. So because this is a little bit, you can say the changes are done by the NTA for the coming NTA examination. So I would like to explain. So just first the paragraph you will see. I'm going to highlight few important points and I will discuss. I will try to elaborate. Because as you know, the NCERT books have been written in very philosophical manner. You should know the meaning of each and every term, words. So just you'll find it. The first sentence is, "How wonderful is the living word." So just it is going to attract the attention of all us. The living word is a very, you can say, charming. It is wonderful. After that, they are saying that the wide range of living types is amazing. So you will find out maybe like in the aquatic ecosystem, or maybe in the on the terrestrial land, or anywhere you will find out different types of the living things are present, and they all are very unique in their different ways. Here they have used the next sentence. They are using the extraordinary habitats in which we find living organisms. Habitat. What does it mean? Habitat is the natural place where any organism resides. So maybe like some are aquatic animals. They are found. They are very just going to develop in the water. Some are like on the land, etc. Right? Some are going to just enjoy the life both in water and as well as on the land. ठीक है? तो habitat का मतलब क्या होता है? Like this, you can say that natural place or environment where they are going to reside. ठीक है? अब इनमें different habitats में देखिए क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं कि like cold mountains भी हो सकता है जहाँ पे living organisms पाए जाएंगे. Next, the word they have used, that is the deciduous forests. Deciduous forest आप जानते हैं जैसे most of the trees they are going to shed their leaves at the time of autumn or winter season में they are just going to shed their leaves once in a year. तो वो forest जो deciduous trees के बने हुए हैं या having the deciduous trees, they are called as deciduous forest. Oceans you are familiar, freshwater lakes, deserts or hot springs leave us speechless. तो ये सारी चीजें different natural habitats अब जब आप देखते हैं तो really we become very speechless. We don't have any words to express our like the feelings, how beautiful they are, how they are going to show the different variety and biodiversity. Am I right? Next sentence you will find out the beauty of galloping horse. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है गैलोपिंग हॉर्स. इसका मतलब क्या होता है? गैलोपिंग हॉर्स का मतलब वो सरपट दौड़ने वाला घोड़ा जो एकदम मूवीज में देखते हो आप, भाग रहा बिल्कुल बेताशा दौड़ा जा रहा. तो उस तरह के जो हॉर्स जो दौड़ते हैं उसको हम इंग्लिश में गैलोपिंग हॉर्स बोलते हैं. द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स आर द माइग्रेटिंग बर्ड्स. Migrating birds में you would be very familiar as you know Siberian cranes. They come every year near the Bharatpur, Rajasthan. From Siberia, रशिया से वो बर्ड्स आ जाती हैं और दे रिजाइड हियर बिकॉज रशिया में साइबेरियन एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड जब होती है तो दे माइग्रेट टुवर्ड्स इंडिया, मेनली भरतपुर. ठीक है. नेक्स्ट यू विल फाइंड आउट द वैली ऑफ फ्लावर्स. यू माइट बी अवेयर आर द अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर. या तो फिर अटैकिंग शार्क्स ये हमारे दैट इवोक्स आपका मतलब क्या होता है कि it is just mixed with the feeling of fear and excitement.
आ का मतलब क्या है? फीलिंग ऑफ, यू कैन से द फियरनेस प्लस एक्साइटमेंट, बहुत ही अजीब कैफियत होती है, एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर, और फिर हमें एकदम से आश्चर्यजनक चीजें लगती हैं। तो अंडरस्टूड दीज कीवर्ड्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इन प्रॉपर मैनर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे टर्म आया है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखो बेटा वर्ड यूज किया पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ? देखिए जैसे मैं कहूँ कि इंजीनियर्स कॉलोनी, तो इट इज एक्सपेक्टेड मोस्टली द पीपल आर ऑफ सेम प्रोफेशन, लाइक इंजीनियर्स आर रिजाइडिंग देयर। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पॉश एरिया है जहाँ पे सारे प्रोफेशन के लोग, मे बी engineers, doctors are like maybe some of different other professions, they all are residing। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन होती है वो एक स्पेशीज के से बनती है। दे ऑल द पॉपुलेशन इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और जो कम्युनिटी होती है ये दिस इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस, तो सेम मैनर यू कैन अंडरस्टैंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। I mean the ecology term, these terms are often used। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या कोऑपरेशन एवं मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज में आपस में कोऑपरेशन हो, या फिर एमंग द पॉपुलेशंस ऑफ कम्युनिटी, या ये भी हो सकता है कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं में जो मेंबर्स हैं उनमें भी आपस में कोऑपरेशन और इवन हो सकता है। इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि लाइक जो सेल होती है दैट इज मेड अप लाइक इनसाइड यू विल फाइंड व्हाट द साइटोप्लाज्म रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स वुड बी देयर। तो ये जो सेल्स हैं दे आर एज यू नो द सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हम लोग सारे लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? देखो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, all three are included, am I right? So only we should not only include the plants or animals, we have to also include the microorganisms, they are also the part like included in the in the organism, am I right? So they are talking a cell make us reflect on what indeed is life। so इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीजें जो हैं ये they are going to raise the question कि in real terms वास्तव में लाइफ है क्या, indeed what is life? So further they are explaining this question has two implicit questions। इस सवाल में दो छिपे हुए हैं। implicit means hidden, implicit का वर्डली मीनिंग क्या होता है? हिडन क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन। इसमें दो क्वेश्चंस क्या क्या हैं अभी? पहला क्वेश्चन ये है दैट इज द टेक्निकल वन, दे हैव ऑलरेडी एलैबोरेटेड एंड सीक्स आंसर्स टू व्हाट लिविंग इज। और आंसर क्या चाहता है कि व्हाट लिविंग इज एज अपोज्ड टू द नॉन लिविंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके क्या फीचर्स हैं? वी विल डिस्कस द डिफाइनिंग फीचर, जनरल फीचर्स, ठीक है ना। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल। सेकंड क्वेश्चन इज फिलोसफिकल वन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो फिलोसफिकल वन है। तो दे आर गोइंग टू मेंशन सिक्स आंसर टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इट इज करेक्टली प्रोनाउंस्ड एज पर्पस। सो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि मकसद क्या है लाइफ का। तो बहुत ही ऑनेस्टली एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के बारे में हमें चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद क्या है लाइफ का, दिस इज ऑल द वर्क ऑफ सेंट्स एंड द महात्मास, दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन अस व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। बट हम एज अ बीइंग द साइंटिस्ट और स्टूडेंट ऑफ साइंस we can only focus on what is the living and how it is different from the non-living things, ठीक है। तो they have just beautifully mentioned just made the background of the chapter the living world, am I right? उसके बाद से देखिए देयर इज जस्ट मैंने कहा कि जो न्यू बुक में है वहाँ पे आपको डायरेक्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ से दे रखा है। इफ यू गो थ्रू द न्यू बुक, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आई मीन, तो you will find it they have discussed directly from here। just you can see diversity in the living world, many things they have removed। डाइवर्सिटी वाला जो पोर्शन है वहां से डायरेक्ट है, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया है यहाँ से उस पैराग्राफ के बाद ये शुरू है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है।
लेकिन जो अभी एनटीए का न्यू लेटेस्ट अपडेट आई है, सिलेबस जो आया है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाट इज लिविंग, ठीक है। तो ये पोर्शन रिमूव्ड है इन द न्यू टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। तो बट ये दिस इज ऑफ ओल्ड, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। ये एडिशनल आप फोटोकॉपी ले सकते हैं या कहीं से बारो कर लें, आप कहीं से मिल जाए पुराना अगर ये, तो मैटर। तो आई एम कमिंग इन दिस what is living. So then when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. तो जब हम किसी चीज को लिविंग कहने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली का मतलब क्या होता है एनीबॉडी, ट्रेडिशनली, ठीक है ना। कन्वेंशनली का मतलब ट्रेडिशनली। तो जनरली हम क्या करें, अगर हम किसी चीज को लिविंग कहने जा रहे हैं तो हम कन्वेंशनली डिस्टिंक्टिव फीचर्स पे फोकस करते हैं, जिसमें जनरली क्या क्या आता है बेटा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट या कॉन्शियसनेस कह सकते हैं आप सिंपल वर्ड्स में। द माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यूनिक या जो फीचर्स कहीं और ना मिले, तो ये फीचर्स हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है ना। तो और you are studying these the general features from since time immemorial, you can say, like since junior classes, ठीक है। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. तो अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ रखा है कि लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये सारे फीचर्स होते हैं पेक्यूलियर फीचर्स या लाइक सेलेंट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन हम 11th में पढ़ेंगे कि देयर आर ओनली 3 डिफाइनिंग फीचर्स। तो इसमें आपका मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट इज मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड इज कॉन्शियसनेस। तो सिर्फ 3 डिफाइनिंग फीचर माने जाते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? डिफाइनिंग फीचर का मतलब कि उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके एक्सेप्शन हैं, तो इसलिए हम, जैसे रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, इसलिए हम उनको डिफाइनिंग फीचर तो नहीं बोलेंगे, जनरल फीचर्स बोल सकते हैं। आर गेटिंग? यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग फीचर्स एंड द जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में आप सब इंक्लूड कर लेंगे जो भी आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन डिफाइनिंग का मतलब वो उसका एक भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। एक और चीज ऐड कर दूं मैं कि लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड एनिमेट यूज करते हैं और नॉन लिविंग के लिए इनएनिमेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर। तो ये एज इट इज क्वेश्चन बेटा आया हुआ नीट में, डायरेक्टली उन्होंने पूछ लिया कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये पूरा सेंटेंस ही बोरो कर लिया था वंस एग्जामिनेशन ऑफ नीट, ठीक है। उसके बाद आता है द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, ठीक है। ऑब्वियसली वी ऑल आर गोइंग टू ग्रो। इसमें एक एडिशनल चीज बता दूं कि जैसे सपोज ए वन द चाइल्ड इज ऑफ 6 ईयर्स एज, तो उसके बॉडी में कितनी सेल्स होंगी? 6 × 10⁻15 या 15 जीरो आगे लगा दो, उतनी सेल्स, एस्टिमेटेड नंबर है ये। इसी तरीके से एक आदमी, एक आई मीन द बच्चा है 10 ईयर्स का, तो 10 × 10⁻15 सेल्स हो जाएंगी। दिस इज एन एस्टिमेट, राइट। तो इसी तरीके से एज यू नो ग्रोथ कैसे होगी? सेल डिवीजन से होगी। इन प्लांट्स द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो ये यहाँ पे डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली इनमें ग्रोथ हमेशा थ्रू आउट द लाइफ होती रहेगी, लाइफ स्पैन जितना भी उसका लाइफ स्पैन है, एंड कंटिन्यूअसली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। लेकिन एनिमल्स में जैसे आप जानते हैं कि 12 to 18 ईयर्स मैक्सिमम ग्रोथ होती है बच्चों में। जब आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं उस वक्त मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है बच्चों की, 7th स्टैंडर्ड से 12th तक। फिर आपका 18 से 21 तक थोड़ी बहुत लिटिल बिट हेयर लाइक फ्यू सेंटीमीटर या मिलीमीटर हो सकता है। 21 के बाद ज़्यादातर साइंटिस्ट बिलीव करते हैं मेडिकल साइंस के लिहाज से कि फिर ग्रोथ ह्यूमन बींग्स में नहीं होती, राइट। उसके बाद सीज हो जाती है। तो दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक दैट। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell। लेकिन जैसे आपने बंद कर लिया फिंगर या आप गिर गए, नी में चोट लग गई, तो सेल्स का यू कैन से द न्यू सेल्स आर गोइंग टू फॉर्म, टिश्यूज का न्यू फॉर्मेशन होगा और रिप्लेस हो जाता है, ठीक है।
यूनिसेलुलर ऑर्गन्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो ये एक पॉइंट है, इसके बेस पे वन क्वेश्चन वाज मेड। आई जस्ट वांट टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि इस पे लाइक नेक्स्ट देखिए आप, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। इन विट्रो कल्चर क्या होता है, देखिए दो टर्म्स होते हैं, इन विट्रो मींस इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, और एक होता है इन विवो, VIVO, इन विवो का मतलब होता है इन नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। तो इन विट्रो जैसे आप टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं, cultures by simply counting the number of cells in the microscope. One must remember that increase in body mass is considered as growth. तो जो बॉडी मास अगर वेट बढ़ रहा है तो जाहिर है दिस इज गोइंग टू शो द ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो, ये यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, आप थोड़ा सा अलग चीज यू कैन ऑब्जर्व हियर कि दे आर सेइंग कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो ग्रो if we take increase in the body mass as criteria for growth। तो इसमें आगे देखो देन मेंशन किया है जैसे कि माउंटेन्स हैं, आप मान लो 5-7 साल पहले किसी इलाके में गए जहाँ पे माउंटेन जो था वो 15 फीट उसका पीक की हाइट थी, अब 5 साल के बाद जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं 15 नहीं शायद 16-17 हो गया, तो लेकिन वो जो ग्रोथ जिसको आप कह रहे हैं वो एक्चुअली ग्रोथ नहीं है, बिकॉज दैट increase has been observed due to the deposition of the pebbles or maybe dust from outside। ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि ग्रोथ शुड बी, जैसे एक बेबी है 6 मंथ्स का, आप 1 साल के बाद गए तो 1.5 साल का हो गया होगा, तो ग्रोथ उसकी जो हो रही है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ कहलाएगी, ठीक है राइट। तो दैट ग्रोथ शुड बी कॉल्ड एज द रियल ग्रोथ। माउंटेन्स या बोल्डर्स हैं या फिर सैंड मोड्स वगैरह हैं, टीले हैं इसके रेत के या सैंड के, इनको हम नहीं बोल सकते। However, this kind of growth exhibited by non-living objects is by accumulation of, देखो यहाँ रीजन मेंशन कर दिया कि इकट्ठा क्या हो गया, accumulation on the surface। so इस ग्रोथ को हम ग्रोथ नहीं मानेंगे, ये सिंपली जो है accumulation of dust particles हो सकता है, pebbles हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए, इन लिविंग ऑर्गन्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ देयरफॉर कांट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन, इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना गया। डिफाइनिंग फीचर क्या माने गए, वन इज मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज द कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, ओनली 3 conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained and then we understand that it is the characteristic of living system। a dead organism does not grow। तो ये भी सही है कि जैसे आप कह रहे हैं कि भाई माउंटेन है या फिर जैसे बोल्डर हैं या फिर जो सैंड के टीले हैं, वो ग्रोथ आपको लग रही है लेकिन वो ग्रोथ रियल में नहीं है। एंड डेड, इसी के साथ एक और चीज भी बिल्कुल सही है कि पेन है या मार्कर है या पेंसिल है, दिस आर नॉट गोइंग टू ग्रो, ठीक है ना। बट यहाँ पे हमें डिस्टिंग्विश करना है 11th में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग फीचर्स एंड द जनरल फीचर्स, जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो this is the first video, I'm not going to make it longer, and I'm going to finish here, and in successive the videos I'm going to discuss all the chapters, and mainly the NCERT lines I will discuss because many questions are framed, और जब तक आप समझोगे नहीं तो उसके टर्म्स नहीं क्लियर होंगे, कुछ बच्चों को दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड बाइलिंगुअल क्लास, कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन गलत ना हो आपके, ठीक है। और this is the purpose, okay। So I will continue in the next the video, the next topic। Thank you very much।